محمد فی کل کلامنا یا رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن اور خصوصی عبادت ادا کرنے کے لیے جمع کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں تھوڑی دیر دین اور اسلام کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے سنانے کا موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بیان کرنی ہے وہ سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں اور ان کے تعلق سے عقائد کے اعتبار سے جو بھی غلط فہمیاں ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اصل میں یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب طریقے کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے۔ تو بعض ایسے عقائد کو ختم کرنے والے اور عقائد کے درمیان میں بیچ کو ختم کرنے والے رہتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے اشکالات اور ایسی باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس کی پوری وضاحت آ گئی تو اس وقت میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے حد سے زیادہ ہے۔ معجزہ تو سمجھتے ہیں خلاف عادت کوئی بھی کام ہونا جو کہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن مجید کا پڑھنا، اگرچہ کہ آپ کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں سیکھا، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی ایسی فصاحت اور بلاغت والی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کی زبان سے یہ نکال رہا ہے، یہی معجزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شق قمر، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، یہ بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے معجزات ہیں، لیکن ان کے مقابل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے پہلے اور بڑا معجزہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جیسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے۔ یہ دونوں ایک ناد ہے کہا ہے۔ کس میں ایک ناد ہے؟ تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک ناد ہے کس میں؟ اس طریقے پر جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت میں نہ عورت تھی نہ مرد تھا، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اور اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ویسا ہی یہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں ایک ناد ہے اس میں، اور یہ دونوں ایک ناد ہے کس میں؟ تو فرمایا جیسا آدم علیہ السلام فرشتوں کے درمیان میں رہے، پہلے دنیا میں اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا
فرشتوں کے پاس رہے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہمیں اٹھا لیے اور وہ اب فرشتوں کے ساتھ ہے اوپر، انہوں بھی فرشتوں کے ساتھ رہے اور انہوں بھی فرشتوں کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ بھی بتایا جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے سیدھا نیچے اتارا، ویسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قیامت کے قریب ویسا ہی اوپر سے نیچے اتارے گا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے کہا گیا آدم عیسیٰ دونوں ایک ناد ہے، انہی چیزوں کے اندر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جھولے میں بات کرنا۔ ایسے بہت سارے کم بچے ہوتے ہیں، بلکہ پوری تاریخ کے اندر اٹھا لیا جائے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی زیادہ سے زیادہ 8 بچوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جنہوں نے گہوارے کے اندر یعنی جھولے کے اندر بات کرے۔ ان میں سے ایک ہے مریم ابن عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ بھی جھولے میں بات کیے ہیں۔ اور بات بھی یہی تھی جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا، جب حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود کے اندر لے کر آئی، جیسے ہی گھر پہنچی، آتے ہی بہت سارے لوگوں نے تانا دینا شروع کیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، کہ اے مریم تیرے باپ بھی اچھا تھا، امام صاحب تھا، ایک مسجد کا امام تھا، اور یہ اچھے اخلاق والے کے پیٹ میں پیدا ہو کر تو بہت ہی بڑا غلط کام کر کے آئی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت مریم علیہ السلام نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے پوچھو نہ، کو پوچھنا ہے تو وہ بچے پوچھ لو جاؤ۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تو فرمایا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہنے لگا وہ چھوٹا بچہ کیسا بات کرے گا جھولے میں، تو جواب دے، تو غلطی کر کے آئی ہے اور تیری طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو ڈانٹا جا رہا تھا۔ اس وقت میں جھولے میں سے ایک آواز آنے لگی، یہ چھوٹا بچہ تتلی زبان سے، اگرچہ کہ زبان تتلی لیکن قرآن مجید کی ایسی آیتیں پڑھ رہا تھا جو آیتیں کبھی اس سے پہلے نہیں سنی گئی تھی۔ کیا کہا؟ فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ عبداللہ کا تو اللہ کا بندہ، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں میں کہیں بھی رہوں گا وہاں پر بابرکت ہی رہے گی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمام لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری اماں کی بات سن کے زندگی گزاروں۔ یہ تمام باتیں چھوٹے بچہ کیا ہے، یہی ہے حضرت عیسیٰ۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جھولے کے اندر بات کرنا، ایسا کوئی بھی بچہ بات نہیں کر سکتا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور تیسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید سورہ آل عمران، یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور یہ پارے 3 قرآن مجید کے جو 30 پارٹ ہیں ان میں سے تیسرے پارٹ سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ نے اس سورے کا نام ہی آل عمران رکھ دیا ہے۔ آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندانی کے تعلق سے پورے واقعہ اس کے اندر بیان۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی مٹی کا ایک گڑیا بناتے، پرندہ بناتے اور بنا کر اس کو ہاتھ میں پکڑتے تو اس کے اندر جان پڑ جاتی، اٹھ کو چلا جاتا وہ صحیح۔ جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دیا تھا۔ مٹی سے گارے سے کوئی چیز بناتے، کسی کا شکل بناتے، مثلا یہ گھوڑا بنا دیے،
या छोटे छोटे परिंदे बना दिए, जैसे ही वो परिंदा बनाते थे फौरन उसके अंदर जान भी पड़ जाती, वो उठ को भी चला जाता था। ये भी अल्लाह ताला ने कई को दिया, उसी का कुरान मजीद के अंदर तज़किरा है, व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम। ये सब भी मैं इसलिए दिया ताकि ये निशानी के तौर पर लोगों के सामने जाहिर हो। अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहयअतित तयरी फअनफुख़ु फी, जैसे ही मैं परिंदा मिट्टी का बनाता हूँ, फअनफुख़ु फी, फिर उसके अंदर फूंक मारता हूँ, फूंकता हूँ तो उसकी वजह से उसके अंदर जान पड़ जाती है और उठकर चला जाता है। यह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुअजिजा है। चौथा मुअजिजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यह था कि जो भी अम्मा के पेट से बच्चे पैदा होते, अगर वो अंधे हैं, ऐसे अंधों को भी बीनाई आ जाती थी, हंका दिखना शुरू हो जाता था। कोई भी डॉक्टर अगर किसी का इलाज करे तो उस वक्त में किसका इलाज करते हैं? जो बीच में पैदा होने के बाद अच्छे रहे, फिर बाद में बीनाई चली गई तो उसके बारे में इलाज चलता है और उसके बारे में कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन जो पैदाइशी तौर पर जो पैदा होते हैं और पहले ही से अंधे हो, उनका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस जमाने में ये मुअजिजा दिया और मुअजिजा देकर ये बताया कि ईसा के पीछे कोई हाथ है और वो अल्लाह ताला है जिसने ये पूरे निजाम को कायम करके चला रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुअजिजा ये भी दिया, कुरान के अंदर उसका तज़किरा है। कुरान के अंदर है वल अबरस, अबरस कहते हैं एक बरस की बीमारी होती है, वो बीमारी जिसकी वजह से आदमी के पूरे जिस्म के अंदर सफेद सफेद मच्छे आ जाते हैं और ये बीमारी ऐसी है कि दूसरों को लग जाती है। इस वजह से जहां तक हो सके आदमी उससे दूर भागते रहता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये पावर दिया कि उसकी वजह से और उस बीमारी की वजह से जो भी परेशान रहता था उस बीमारी को भी खत्म कर देते थे। और ये भी सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही का मुअजिजा है। फिर उसके बाद अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मुअजिजा ये भी दिया, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। जो आदमी मर गया है उसे भी जिंदा करते थे। लेकिन एक बात याद रखे, जो भी जिंदा करेगा वो अल्लाह ताला नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से हुआ है, ये मान सकते हैं। और ये नबी से अगर कोई ऐसा काम होता है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको मुअजिज़े के तौर पर दिया गया है, उसके अलावा कोई भी किसी को जिंदा नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये भी एक मुअजिज़ा दिया। इससे भी बढ़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये भी मुअजिज़ा दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों के ऊपर उठा लिया गया। कहीं को उठा लिया गया है उन्हें, किस वजह से? तो उसके ताल्लुक से तारीख के अंदर ये लिखा है और इसका तज़किरा ना कुरान में है ना हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरीके से उठाया है और उनके उठाने की वजह क्या है। लेकिन हमें मुसलमान हैं और हमारे अकायद ऐसे होनी चाहिए जैसा अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, हमें उसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है, चाहे हमारी अकल को समझ में आए या ना समझ में आए। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त में जो यहूदी थे वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए आए, इसलिए मारने के लिए आए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उस जमाने में ये तमाम के तमाम लोग ये मुत्तफिक हो गए और ये कहने लगे इन दूसरे दिन की तरफ लोगों को बुलाता है और हमारा जो दिन है उसको छोड़ने को कहता है और ये ईसा ऐसा है कि ये हमें बार बार हमारे ऊपर ऐसी ऐसी नब्बे बातें लाकर जाहिर करता है जो कि हमारी किताबों के अंदर नहीं है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उस जमाने का जो बादशाह था उसके सामने भी जाकर ये बता दिया गया ये झूठा है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा गया ये जादूगर है, इसी वजह से उसके हाथों में परिंदा रखे तो वो भी उड़कर भाग जाता है और ये ऐसा जादूगर है कि हर तरह की बीमारी को भी शिफा देता है। तो गोया कि ये क्या की है, अब किसी भी तरीके से इसे खत्म ही कर दिया जाए वरना हमारा पूरा जो दिन है पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही मारने के लिए आए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी भागना शुरू करे और जाते जाते ऐसे वक्त में पहुंचे और ऐसी जगह पर जाकर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद
चारों तरफ से एक कमरा था, उस कमरे के अंदर जाकर बैठ गए। और वहां पर बहुत सारे ऐसी ऐसी रिवायतें हैं कि उसके बाद क्या हुआ, और इसके बारे में साफ तौर से बाइबल के अंदर लिखा गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त में उस कमरे के अंदर चले गए थे, जाने के बाद उसके अंदर दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के अंदर यह बता दिया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि अय अल्लाह, अब हमें क्या करें कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें मारने के लिए आ चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी तो कहा, मुतवफ्फी का वराफियों का, अय ईसा तुम डरो मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही कमरे के अंदर बैठे रहे और उनके साथ में 3-4 और साथी बैठे रहे, उनको हवारी कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हवारी में से एक से कहा कि कौन है मेरे वास्ते अपनी जान को कुर्बान दे सकता है, कल क़यामत के दिन उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो उनमें से एक ने उठा और उन्होंने कहा, अरे ईसा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फौरन उसने उठा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर पगड़ी रखी हुई थी, उसको उठाकर अपने सर के ऊपर पहन लिया और ईसा अलैहिस्सलाम के कपड़े भी पहन लिया। पहनकर बाहर जाने लगा तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दो छवि थी, जैसा उनका सूरत दिखता था वैसा ही उस आदमी को भी दिया गया। तो फिर वो लोगों ने आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह में उसको मारकर चले गए। ये एक रिवायत के अंदर लिखा है। और दूसरी रिवायत के अंदर बल्कि अक्सर जगह पर यही लिखा हुआ है कि वहां पर हुआ यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही कमरे के अंदर चले गए तो जाने के बाद उनके साथ में कोई नहीं थे, बल्कि जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनमें से जो लोग मारने आए थे, आने के बाद उनमें से किसी ने कहा, उन्होंने अंदर है कि नहीं देखा, तो देख कर आने के वास्ते जो आदमी गया था उनके ताल्लुक से लिखा गया है कि जैसे अंदर आया, आने के बाद अल्लाह ताला ने उसे ईसा अलैहिस्सलाम की नात बना दिया है इनाया से मारने के वास्ते। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी सूरत को, उसकी शक्ल को ईसा की जैसा बना दिया। और जैसे ही वापस आया, आने के बाद उसे मारने लगे, अरे मैं तुम्हारा आदमी से, तुम्हारा आदमी नहीं, क्या उसे मार को सीधा सूर्य के ऊपर लटका दिया गया था। अब यहां पर कुरान मजीद कहता है, यहां पर ये लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, इसी वजह से वहां पर सलीब लटका दिया जाता है। लेकिन कुरान क्या कहता है, पारे 6 के अंदर सूरत निसा की आखिर आयतों के अंदर अल्लाह ने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक तस्करा करते हुए कहा, व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम, के ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, व कौलिहिम इन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। लेकिन अल्लाह कहता है, वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिहा लहुम, हमने तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मारा और ईसा अलैहिस्सलाम को हमने वफात नहीं दी, बल्कि उनको सलीब के ऊपर भी नहीं लटका दिया गया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि हमें इनके दरमियान में ऐसा एक ड्रामा करके दिखा दिया और ऐसा एक तस्वीर बना दिया जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो गए। फिर अल्लाह ताला कहता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम का है बर्रफाहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अजीजन हकीमा, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमानों के ऊपर उठा लिया है। आज जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान के ऊपर उठा लिया तो फिर कब आते हैं उन्होंने, आने के बाद फिर क्या होगा, ये तो बहुत लंबा वाकया है। और उसके ताल्लुक से ऐसा वाकया है कि उसके बारे में बोलने से पहले याजूज माजूज का तो कोर असल वो क्या होगा, क़यामत से पहले क्या क्या फितने आएंगे, उसके बारे में बताना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कभी मौका हो तो उसको बता दिया जाएगा। वहां पर जैसे ही क़यामत का वक्त आएगा, करीब आए वक्त में बहुत सारे फितने आएंगे, उनमें से याजूज और माजूज का भी फितना रहेगा। और ये फितना एक ऐसा है जिसको कहा जाता है दज्जाल का फितना। ये दज्जाल इतना खतरनाक है, ये क़यामत के करीब आएगा और क़यामत के करीब आकर हर ईमान वाले को फिसलाने की कोशिश करेगा। उसके हाथ में एक तरफ जन्नत को लेकर आएगा और एक तरफ जहन्नम को लेकर आएगा, लेकिन जो जन्नत दिखाएगा हकीकत में वो जहन्नम है, और जिस जगह पर वो जन्नत को दिखाता है हकीकत में वो जहन्नम रहेगी।
और वो लोगों को फिसलाने की कोशिश करेगा। और ये इतना खतरनाक फितना है कि उस वक्त में हजरत महदी भी आएंगे, और महदी आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिमश्क की जामिया मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के वक्त में जामिया मस्जिद की मीनार के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दो फरिश्तों के सहारे टेक लगाकर ऊपर से अल्लाह ताला नीचे उतारेगा, और उनकी इतनी खूबसूरती रहती है, और उस खूबसूरती को देखकर रोशनी आ जाएगी और लोग नमाज पढ़ने के वास्ते खड़े रहेंगे, लेकिन हजरत महदी इमामत करने के लिए जाते रहेंगे। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आसमानों से जिंदा जमीन के अंदर उतारेगा। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आने के बाद वो इमामत करेंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे। और उन आने के बाद क्या होगा, तो उनके ताल्लुक से अहादीस के अंदर ये लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में आने के बाद अल्लाह ताला उनकी सांस के अंदर ऐसे असरात रखेगा, एक मर्तबा अगर वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस की वजह से जितने दूर तक उनकी सांस जाती है वहां तक कोई भी कुफ्र करने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, उनकी सांस कहां तक जाएगी? सांस को तो खाली हमें यहां तक फूले तो वहां तक ही जाते, फिर उतनी बड़ी बात कही को, तो उनके ताल्लुक से लिखा है सांस उनकी वहां तक जाएगी जहां तक के उनकी निगाह जाती है। हम क्या होना कि निगाह कहां तक देखते हैं वहां तक सांस निकलेगी, और उसी सांस के बदले में ये पूरे का पूरा जितना भी रहेगा कुफ्र खत्म हो जाएगा। 40 पर 5 साल जिंदगी गुजारेंगे, फिर उसके बाद शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, फिर उसके बाद उनको भी मामूली अदना कैसा मरते कि उनको वैसा ही मौत आएगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त में दुनिया में आएंगे उस वक्त में वो नबी नहीं रहेंगे, और उस वक्त में वो खाली एक उम्मती की शक्ल में आएंगे, और अल्लाह ताला उनको वैसा ही छोड़ेगा। फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मरने के बाद और उनके इंतकाल के बाद उनको ले जाकर कहाँ दफन किया जाएगा? रौज़ा-ए अक़दस यानी मदीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में, वहां पर अब भी जगह खाली रखी हुई है। जो लोग भी वहां पर जाते हैं देखते हैं कि वहां पर जगह रखी है, वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर दफन कर दिया जाएगा। इसी वजह से पूरा नक्शा खींचा गया है। असल में बताना मकसूद यह है कि साल तो शुरू हो चुका है अंग्रेजी हिसाब से, लेकिन शुरू होने के बाद हम में से बहुत सारे मुसलमान, जैसा कि गुज़श्ता जुमा भी मैंने मुकम्मल जहां तक हो सके समझाने की कोशिश की और बताया, हमारा साल नहीं है, ये साल है गैरों का। अगर हमें उनके अंदर काम करेंगे और उना की जैसा करेंगे, फिर अल्लाह के सामने आपको मदद मांगे तो अल्लाह ताला कहां से मदद देगा? आदमी करता है 90 साल के अंदर केक काटने में सब कुछ कर लेता है, लेकिन फिर मदद मांगना आगे तो फिर वाश मांगे जवान है अल्लाह खुद दे, या अल्लाह ताला कैसा देगा? अल्लाह ताला भी कहेगा तू जैसा करे कि वैसा मैं भी करता हूँ। कहीं को मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तू जिसके कामा करे कि वैसा ही तुझे कर दिया जाएगा। लेकिन खुशी की भी बात है, अफसोस की भी बात है। खुशी की बात यह है बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कामों के अंदर मुलव्वस नहीं हुए हैं, अच्छा काम करे हैं, नहीं काटे हैं, बहुत खुशी की बात। लेकिन अफसोस की भी बात यही है काटने वाले सबसे ज्यादा तबका मुसलमानों ही का था, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि बेचने वालों का तबका भी मुसलमानों का था। और हम ये समझते हैं खाली थोड़ी देर के वास्ते बड़ा काम कर डाले तो बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन दिल पे हाथ रखे कि अगर वो फायदा आएगा लेकिन अल्लाह ताला उसे हराम कहता है तो उस वक्त में हमारे पेट में कहां तक रहेगा? अगर रहेगा तो फिर नमाजें हमारी कहां जाएगी? ये पूरे चीजें हैं, इसलिए कभी भी इन कामों के अंदर अंगली नहीं रखना चाहिए। अगर हमसे हो चुका है तो उससे पहले अल्लाह से तौबा कर ले, आय अल्लाह आइंदा से नहीं करूंगा, इसलिए कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला है। अगर नहीं हुआ है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, आय अल्लाह हमारा कब नहीं हुआ, हमेशा पूरी जिंदगी में ऐसा गुजारना पड़ेगा, दुआ करना चाहिए। आखिर में गुजारिश यह है कि हमें साल शुरू होने के बाद अगर हमें शरीयत के हिसाब से क्या तो भी करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? तो उसका जवाब यह है करना चाहे तो ये कर सकते हैं कि हमें गए सो साल 2025 में मैं नमाज क्या भी पढ़े नहीं, कम से कम 2025 से शुरू करना ये सोचना चाहिए। अच्छी बात, यह तो दुनियावी दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी सोच सकते हैं।
میں گئے سو سال پورا خالی پھر کو ایسا ویسا زندگی گزار رہے، کم از کم یہ سال تو بھی ذرا کما لیں گے، ذرا اچھا کریں گے، حلال کمائیں گے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو مالدار ہونا بھی ضروری ہے، آج مسلمانوں کو مال کمانا بھی ضروری ہے۔ مال کمانا کوئی قبیح بات نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، حرام میں غلطی ہے، حلال میں آدمی جتنا چاہے اتنا کمائے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ ان کاموں کے اندر اچھے کام کر سکتے ہیں۔ گئے سو سال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا تھا، اب میں اس سال تو کم از کم اچھا کر دیں گے۔ گئے سو سال میں پورے کام سیکھنا تھا، پورا کرنا تھا، لیکن سب کچھ برباد کر ڈالا، اب تو بھی کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھے چیزوں کے واسطے آدمی سوچ سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز